The basic guideline of making a complex engineering problem is that it should have a complexity. So this WP1, WP2, 3, and 7, these are actually the different dimensions of complexity that is to be added into a complex engineering problem. So the top level statement says complex engineering problem have a characteristic WP1 and some or all of WP2 to WP7. What it means is any complex engineering problem that we compose, it must have WP1 and some of the others. Some of the others means at least दो कोई और dimension these के अंदर हो तो it would make up a complex engineering problem. If a complex engineering problem has WP1, WP4, and WP7, it is a valid complex engineering problem. If complex engineering problem has only WP1, this is not a valid complex engineering problem. So as per guideline, any complex engineering problem which we want student to confront must have the first dimension, that is WP1, और बाकियों को मैं कह सकता हूँ कि ये एक different dimensions हैं complex engineering problem की, जिसको आपने mix और match करना है. तो अगर WP1 से WP7 तक हर चीज उसके अंदर है, तो I would say that this is the most complex problem that can be placed for the students. For early students, we would like to have minimum possible dimensions of complexity, and as the student moves on in a later semesters, so probably we can add on to the dimensions of the complexity. So let's see what these are. The first is known as depth of knowledge required. So what its statement is, cannot be, so anything comes into WP1 which cannot be resolved without in-depth engineering knowledge at the level of one or more than WK3, 4, 5, 6 and 8. मतलब ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो दिया जा रहा है, जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में किसी सब्जेक्ट में अगर आप दे रहे हैं, तो उसका इन डेप्थ इंजीनियरिंग नॉलेज उसके अंदर शामिल होना चाहिए. और फॉर अ गाइडलाइन it should fall in WK1, WK3, 4, 5, 6, 8. If you remember, WK3 is fundamental, core courses, elective courses. So core, elective, and fundamental courses. This is practice, I hope, and this is research. So अगर इनमें से कोई एक भी WK आप ले लें, तो this can make one dimension of complex engineering problem, that is WP1. ठीक है? Just so इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई complex engineering problem है which is based on WK1, it is not a valid complex engineering problem. यानी कि अगर आप basics physics के अंदर कोई complex engineering problem दे रहे हैं, तो this is not a suitable complex engineering problem. इसी तरीके से अगर आप WK2 is mathematics, so अगर आप mathematics के अंदर कोई complex engineering problem दे रहे हैं, तो probably this is not suitable. So आपका जो complexity problem है वो fundamental, core courses, elective और practice means उसकी जो है let's say modern tool usage आप कह लें, और research, इन चीजों पे focus होना चाहिए. और जो है इनमें से कोई एक knowledge profile भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं और चारों भी हो सकते हैं. सो इफ योर, अगर हम मिनिमम की बात करें, सो इफ योर कॉम्प्लेक्स engineering problem is actually on the basis of WK3 only, that is acceptable. Just an example. And it should be on, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन डेप्थ इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए, तो गाइडलाइन के तौर पे जो हमारे हायर टेक्सोनॉमी लेवल्स के एरियाज हैं सब्जेक्ट में, उनको यूज करना चाहिए फॉर कंपोजिंग अ कॉम्प्लेक्स engineering problem. Just examples. For example, आप स्टूडेंट को कहते हैं मेक अ डेटाबेस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. सो अगर वो इस तरह का कोई काम करता है,
तो डेफिनेटली ही हैज टू अप्लाई इन डेप्थ इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है। एक उस सब्जेक्ट को या नॉन इंजीनियर को देंगे तो उसके लिए शायद ये एक डिफिकल्ट काम है, नहीं कर सकेगा। डेवलप डेट शीट क्रिएशन सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग यूजर प्रेफरेंसेस, मतलब हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप एक पूरा डेट शीट सिस्टम बनाएं, मॉड्यूल बनाएं, सॉफ्टवेयर जो हमें डेट शीट बना दे, जिसमें हमारे डेज की भी प्रेफरेंस हो, स्टूडेंट की भी प्रेफरेंस हो कि जिन्हें हमारे ये मुश्किल पेपर हैं, आसान पेपर हैं, छुट्टी कहाँ पे आनी चाहिए, एग्जाम वालों की अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, सिटिंग प्लान, चीटिंग को कैसे कैटर फॉर करना है, तो समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इट वुड डेफिनेटली रिक्वायर इन डेप्थ इंजीनियरिंग नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Develop e-commerce application for online sale purchase, so definitely it would also require depth knowledge. Develop machine learning based system for trading in stock market. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें we expect के it's not a mediocre type problem, इसमें उसको थोड़ा सा एक engineering knowledge का utilization करनी पड़ेगी। I hope WP1 is clear. Okay. उसके बाद फिर हम देखते हैं we go to the next category which is which I said the second dimension of complexity. So it says the range of conflicting requirements. So whatever problem we have given to that student, it should have a conflicting requirements. इसकी डिटेल अगर देखें तो इसमें दो चीजें कह रहे हैं कि involve wide ranging और conflicting technical engineering और other issues. So, जो भी उसको प्रॉब्लम पोज हुआ है उसमें इन दो में से कोई एक भी चीज हो, either wide range of requirements or conflicting requirements, so that will fulfill the WP2, ठीक है। For example, wide range का अभी आप let's say हमको प्रॉब्लम दिया है कि develop online shopping system including products details। अब ये हमें उसको एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हमने बनाने के लिए दिया है और उसके अंदर जो इसमें बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड रेंजिंग रिक्वायरमेंट। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या दे रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की डिटेल्स भी उसके अंदर हो, आप रखें, शॉपिंग का मैकेनिज्म भी हो, जो स्टॉक पूरी स्टॉक मैनेजमेंट भी उसके अंदर हो, फाइनेंसेस भी हैंडल हो सकें, डिलीवरी सिस्टम भी हो, फिर फीडबैक सिस्टम भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो, रेटिंग हो। देयर आर wide range of requirements you are giving to the students. So if a problem has a wide range of requirements, so we will say okay, this fulfills WP2। और दूसरा conflicting requirement, ये जो आपने requirement दी अगर ये एक दूसरे से conflict कर रही है, एक requirement को improve करने से दूसरी requirement खराब हो रही है, so they are contradicting each other, that is known as conflicting requirement. For example, इसमें first example अगर हम देखें कि searching algorithm हम अगर उसको कोई बनाने को कहते हैं तो उसमें जो अब हम उसको दे सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे। तो एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा तो एफिशिएंसी में कंप्रोमाइज करेगा, इसी तरह मेमोरी और टाइम आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे, स्केलेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी विल कन्फ्लिक्ट, एक को इंप्रूव करेंगे दूसरा डाउन होगा। फॉर एग्जांपल वी आस्क हिम टू मेक एन एटीएम मशीन सॉफ्टवेयर। सो इसमें क्या कन्फ्लिक्ट्स होंगे उसके पास, सिक्योरिटी को ज्यादा बेहतर करेगा तो यूजेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी, सो ही हैज टू मेक अ बैलेंस। अवेलेबिलिटी को अगर बेहतर करेगा तो मेंटेनेंस, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, कॉस्ट टू लीड फंक्शनैलिटी, अगर उस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ही बड़ी कम दे रहे हैं तो वो उसमें फिर ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं लेके आ सकते, ज्यादा काम करना पड़ेगा, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। फॉर एग्जांपल we are traveling from one place to another, so उसमें conflict क्या, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो टाइम हमें कम से कम लगे, रूट सबसे शॉर्टेस्ट लें, स्पीड हमारी फास्टेस्ट हो, ये तो हम कर लें, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट इसके साथ करेगा, सेफ्टी विल कॉन्फ्लिक्ट, द ट्रैफिक रेगुलेशंस विल कॉन्फ्लिक्ट, द फ्यूल विल कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूल कंजम्पशन हमारी होगी, road conditions are binding. So if we just give a student the safety must not be compromised, fuel इससे ज़्यादा नहीं खर्च होना चाहिए, road condition मतलब आपकी गाड़ी हिट नहीं होनी चाहिए और फिर भी आप इतने टाइम में पहुंचे,
तो ये आपको एक उसको conflicting, so he has to just bring out a good balance between these conflicting requirements. So this adds to another level of complexity among the problems which we give to the student. Okay, so this is the meaning of range of conflicting requirements. Any questions? Understood? Sir, conflicting requirements basically अगर हम constraints impose कर रहे हैं जी जी within certain हाँ जी बिल्कुल पैरामीटर्स आप कह रहे हैं कोई भी चीज है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है सो ऑब्जेक्टिव इज टू मेक गुड बैलेंस ऑफ दोस पैरामीटर्स especially once one parameter increasing one parameter decreases the other one. Okay, WP3 is a depth of analysis required. So any problem which has to be developed on the basis of some good analysis of our data. ठीक है, आपको जो भी डेटा मिला हुआ है उसके ऊपर एक आप इन डेप्थ एनालिसिस करके ही उस काम को कर सकते हैं. तो दिस आल्सो एड्स वन मोर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही करना है. उसके बाद जो डेटा मिला है उसको भी पहले देखना पड़ेगा कि वो कैसे उसको एनालाइज किया जाए और उस पर कैसे उसको उसमें कोई कंक्लूजन निकाले जाए और फिर उसके बेसिस पे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें. फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉब्लम देते हैं, एक ग्रोसरी स्टोर इज एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग चेकआउट लाइंस. ठीक है, वो बिलिंग कराने के लिए जो लाइंस हैं वो क्यूज काफी बड़ी हैं, रिजल्टिंग इन डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स एंड डिक्रीज्ड रेवेन्यू. सो अब हम उसको कह रहे हैं कि इसको इंप्रूव करेंगे. व्हाट ही हैज टू सी, ही हैज टू जस्ट फर्स्ट रिव्यू अ लॉट ऑफ डेटा, क्यूज का और दूसरे लोगों का, प्रोडक्ट्स का और सब डिफरेंट पैरामीटर सोर्सेस. So store wants to identify the root cause of problem. So identify the root cause of problem basically is actually the WP3 and develop a plan to improve the customer satisfaction and revenue. So अगर कोई problem है जो कि solve होना है on the basis of a huge data which has to be analyzed first and then you can just come up with some solution. So that is another level of complexity that can be added into the problem. ठीक है, for example जो machine learning के अगर problems हो तो if the data is not in a ready state, जो real data अगर आप लेते हैं तो उस पे काफी हमें एक pre processing करनी पड़ती है. So that is also an example of complex data analysis before we actually apply an algorithm for the solution. Okay, the WP4 is familiarity with the issue. We want कि जो उसको issue दिया जा रहा है बड़ा ही infrequent किस्म का issue हो. For example, हम बच्चे को कोई ऐसा problem नहीं दे रहे जो वैसे उसको इंटरनेट से मिल जाएगा. ठीक है, उसको solution मिल जाएगा. कोई ऐसा उसको काम दे which is a new one. He is unable to find it anywhere. How we can handle this? We can just give him very local problem. आप उसको डिपार्टमेंट का कोई अपना मसला दें, कोई और बहुत से लोकल से उसको इश्यूज जो हैं वो उसके सामने प्रेजेंट करें. He will not find solution anywhere. ठीक है, तो इसकी फॉर एग्जांपल मिसाल ये है, ये लोकल प्रॉब्लम्स की. फॉर एग्जांपल आई आस्क डिजाइन कॉस्ट इफेक्टिव सोलर सिस्टम यूटिलाइजिंग पार्किंग एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जांपल आप कह देंगे ये बैरिया यूनिवर्सिटी की पार्किंग्स को यूज करना है, तो ही हैज टू जस्ट सी कि पार्किंग कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कितनी पार्किंग अवेलेबल हैं, क्या कॉस्ट इफेक्टिव. सो इट इज वेरी लोकल प्रॉब्लम. So he will not be able to find ready-made solution from anywhere since this is a very local. इसी तरीके से इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी कैमरा इन डिपार्टमेंट. आप अपने कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करने हैं, उसका एक पूरा प्लान बनाएं विद कॉस्ट इफेक्ट. सो दिस इज समथिंग ही हैज टू वर्क ऑन इट. ठीक है, ही कैन नॉट फाइंड एनीथिंग रेडी फ्रॉम एनीवेयर. Similarly, calculate optimal intake to maximize utilization of university resources. So let's say कि registrar branch को ये task मिलता है कि हम अपनी intake को ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, कंसीडरिंग कि हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स में व्हाट इज द मैक्सिमम वी कैन हैव और व्हाट इज द मैक्सिमम वी कैन हैंडल विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लोकल प्रॉब्लम फॉर अ यूनिवर्सिटी. सो हमारी इनटेक, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी फैकल्टी, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी विच इज नॉट जेनेरिक. सो इस तरह जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दिए जाएं, जो कन्फ्रंट करें,
if those problems are infrequently encountered problems, so that will also add one level of complexity. Okay. I am moving forward, assuming there are no questions. So if there are any questions, please stop me and you can ask. Okay, WP5 is extent of applicable codes. अगर आपने उसको कोई ऐसा मसला दिया है जिसका कोड ही बना बनाया उसको मिल जाएगा नेट से, तो वो तो फिर वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ. सो यू मेक श्योर कि इसके कोई ऐसे कोड अवेलेबल, स्टूडेंट को खुद ही वो कोड लिखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि राइट अ सी लैंग्वेज कोड फॉर कैलकुलेटर, स्नेक गेम, पावर ऑफ एन, एलसीएम का कोड लिखते हैं, तो ये कोड उसको मिल जाएंगे. ये बड़ी स्टैंडर्ड सी चीजें हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीजें अगर आप देंगे तो इसका मतलब है कि WP5 इज नॉट बीइंग केटर्ड फॉर. लेकिन अगर आप उसको कोई इस WP5 को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यू कैन आस्क हिम समथिंग लाइक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम फॉर अ स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक डाटा उसको दे दें, ठीक है, अपना कोई डाटा उसको दे दें, तो उसका जी प्लीज. सर कोड से मुराद कोड इम्प्लीमेंटेशन कोड है या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिस है, नहीं, कोड ऑफ द इट इज इम्प्लीमेंटेशन कोड. स्टूडेंट लेवल की बात कर रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड्स है, दूसरा कोड आ रहा है. जी जी. ठीक है, स्टैंडर्ड से आप कह सकते हैं कि जो मतलब प्रोसीजर है, लेट्स से अगर एक चीज को इम्प्लीमेंट, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये स्टेप आप करें. और थोड़ा सा अगर आप लोअर लेवल पे चले जाए ईटीसी कोड, तो हायर लेवल पे जाएं तो उसकी कोई मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है जो कि इनकाउंटर होता है और अवेलेबल है, उस पर काम बहुत हुआ, लेट्स से फेस रिकग्निशन पे आप कह देंगे कि आप कोई एल्गोरिथम लिख के लाएं जो फेस रिकग्निशन करे, यू विल फाइंड इट समवेयर. जी सर, ये सीपी है, ये हार्डवेयर बेस्ड हो सकता है? सीपी हार्डवेयर में हो सकता है, provided it just have all these different. मैं क्योंकि इसको कर रहा हूँ, I am just talking about the perspective of software engineering students, तो इसलिए otherwise जो आपकी इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है. एक इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको दे सकता हूँ. लेट्स से कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई है यहाँ पे? ओके, लेट्स से कि हार्डवेयर का आपने पूछा, जस्ट टू क्लैरिफाई दैट सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रॉब्लम है कि हम एक सिनेरियो देते हैं स्टूडेंट को कि जी देयर आर टू माउंटेन्स और उसके नीचे एक वैली है, और उस वैली में जो है वो जब रेनी सीजन होता है तो पानी बहुत ज्यादा, वो एक हाई लेवल ऑफ वाटर फ्लो बनता है, और उसमें फिर इस दोनों माउंटेन्स पे लोगों के घर हैं, उनको क्रॉसिंग नहीं हो सकती. तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ये है कि दे वांट कि उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जाए, ठीक है. अब वो ब्रिज बनाया जाए, उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वहाँ पे हैवी मशीनरी नहीं आ सकती, सिंस द एरिया इज सच, जो लेबर है वो वेरी लिमिटेड है, वो जो उन दो गाँव के लोग हैं वही अवेलेबल हैं, और जो टाइम है वो सिर्फ वो हो सकता है जब रेनी सीजन ना हो या जिस वक्त बिल्कुल वो ड्राई हो चुका हो, जो कि प्रॉब्ली शायद 6 मंथ टाइम है. सो इसमें ये कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी हो गई कि जी 6 मंथ सिर्फ टाइम है, मशीनरी भी नहीं है, उस 6 महीने के अंदर अंदर करना है, मैन पावर भी कम है, तो हाउ टू मैनेज इट, तो उनको बैलेंस करना है. सो दिस इज अ प्योरली फिजिकल वर्क, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. इसी तरह इलेक्ट्रिकल का कोई स्टूडेंट है, उसने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, तो फिजिकली उसने वो सर्किट बनाना है, और उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो उसने कैटर फॉर करने हैं, तो दैट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. लेकिन फॉर सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स नॉर्मली उसका जाहिर है कि क्योंकि वो सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें पढ़ रहा है तो उसमें उसी तरह की चीजें ज्यादा हों. सर फिर CE को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर CEP, मतलब कोर्स और लैब वगैरह? हाँ, तो आपकी ये वाली चीज आप हार्डवेयर में कह रहे हैं, CEP में भी हम डाल सकते हैं? जी बिल्कुल. तो फिर जो CE कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है उसमें तो इट इज नेसेसरी, इट शुड बी अ फिजिकल एक्टिविटी, physical one. इसमें नेसेसरी नहीं है. तो वी कैन से कि एट वन पॉइंट complex engineering activity can also be said as complex engineering problem. Problem to an ठीक है, extent. मतलब वो कह सर सकते हैं. like course theory and lab की जो चीज है वो with discussion with the instructor है वो merge करके भी किया जा सकता है. उसमें एक्चुअली अभी हम उस पे आएंगे ना, तो हम देखेंगे उसमें थोड़े से फैक्टर और भी हैं, जिस तरह इसकी WP 1 से 7 है उसके थोड़े से और हैं, इसमें से बहुत सी चीजें कॉमन हैं,
फॉर एग्जांपल उसमें फाइनेंसेस स्टेक होल्डर उनसे बातचीत करना, सोसाइटी को देखना, एनवायरनमेंट को देखना, तो वो चीजें उसके अंदर थोड़ा सा ये ऐड हो जाती हैं और कुछ चीजें यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन इसमें ओवरलैपिंग है, यू आर राइट, देयर इज एन ओवरलैपिंग, और आप जब वहां जाएंगे तो यू विल आल्सो फाइंड देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन दीस टू। Okay, let's see what is WP6. So WP6 says the extent of stakeholder involvement and level of conflicting requirement. कि अगर जो प्रॉब्लम उसको मिला है, it is on the basis of a large number of stakeholders. उसके stakeholders बहुत ज़्यादा हैं और हर stakeholder जो उसकी अपनी preference है वो उसके लिए important है। So हर stakeholder को satisfy करना है उसमें। So if that is a sort of problem, then it will, we say okay, this includes WP6. इसकी example in a software development project, ठीक है, कोई software development का उसका project है, उसके अंदर जो stakeholders हैं, end users, the project sponsors भी एक stakeholder हैं, developers, quality assurance professionals and other groups. So each of these stakeholders, they have different goals and requirements, such as usability, कोई functionality के लिए उसकी preference है, cost किसी का एक है, financer जो है वो है, जाहिर है कि वो cost limitation है उसकी तरफ से, कोई security के perspective में concern है, कोई maintenance के लिए maintenance फिर नहीं होनी चाहिए, उन चीजों पे concern है। So जब ज़्यादा stakeholders होंगे तो ये contradictions बढ़ेंगी and इसका एक अच्छा balance जो है वो needs to be found out. So design must balance the needs and requirement of all stakeholders. So this also adds to the difficulty levels of a problem. And the last is interdependence. So address high level problem with many components or sub-components. So एक problem हो जिसके बहुत से sub-components, उनको distribute करना pieces में, sub-components को separately उस पे काम करना, उनकी integration, फिर combining them into a single solution. So the example in data analytics, a high-level problem may involve analyzing data sets for multiple sources, which may require various pre-processing steps, feature extraction, and modeling techniques. So each of these steps may have multiple components or sub-problems, such as selecting appropriate algorithm, tuning parameters, handling missing data, dealing with outliers. The complexity of the problem increases with the number of variables, data sources, and modeling techniques used. So, so in a nutshell, a complex engineering problem should have at least 3 WPs, and among those 3 WPs, WP1 should be necessary. जो complex engineering problem है, ये इसकी भी जो definition, explanations हैं, ये time के साथ evolve कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम कुछ 2-3 साल पहले देखते, तो इसमें ये WP7 नहीं बल्कि WP7 के साथ-साथ EP1 और EP2 भी थे, जिसको खत्म कर दिया गया। इसी तरह top वाली जो statement है, उसके अंदर भी कोई additional part था, which has been simplified. So it is evolving. So, but as of today, as per Washington Award, this is the latest structure of complex engineering problem that is being guided to take on. Again, I would say again, आपने अपने आप को सिर्फ ये WPs के ऊपर stuck नहीं करना. If there is any other reflection of complexity, you feel कि हाँ ये भी एक reflection of complexity है, you can just add that also. You can just name the complexity है. हमने इसका ये सारे points देखे. Let's see one comprehensive example. So WP6 में हम लोगों ने extent of stakeholder देखा है. Can the student be a stakeholder? Like हम जिसको problem दे रहे हैं, for example मैंने आपको कहा date sheet का हमने कहा date sheet का एक software बनाना चाहते हैं. The student is one of the stakeholders. So student preference is also included. कि वो student का क्या चाहता है, हम उसमें चाहते हैं. हो सकता है. Anyone can be a stakeholder. Let's see an example.
This is an example फिर हम इसको analyze करेंगे WPS के perspective में. Let's try to understand this example first. Design a neural network-based machine learning system that can detect fraudulent transactions in a banking system. So हम एक machine learning का system बनाना चाहते हैं जो बैंक में frauds होते हैं उनको detect करने के लिए. तो system should ensure following. फिर उसको हम कह रहे हैं कि इस system के अंदर ये features होने चाहिए. It should incorporate basic banking system and transactions. जो basic banking system और जो उसकी transactions हैं वो सब इसमें handle होनी चाहिए. Accuracy of fraud detection with minimum false positive is needed. So जिन्होंने machine learning पे काम किया है they understand कि there is a chances of आपको जब detect करेंगे there is always a chance of false positive. So there is a requirement to minimize this false positive and have an accurate possible fraud detection. The system should be efficient to detect fraudulent transactions with minimum operational cost. ठीक है, cost उसकी कम होनी चाहिए और फिर भी तमाम frauds को वो जरूर check करे और cost भी ज़्यादा ना हो. No inconvenience should be posed to the customers while ensuring their privacy. So जो system हो जो customers हैं आप ये पूरा machine learning algorithm transaction fraud detection करते रहें लेकिन जो customer है it should be transparent to them. They should not have any inconvenience because of the system. It should take care of frauds that emerge over time. So आज जो जितने fraud हमें हमारे सामने आए हैं वो तो है ही हैं लेकिन फ्यूचर में जो कोई पॉसिबल फ्रॉड आ सकता है जिसका हमें आज नहीं पता वो भी इसके अंदर कैटर फॉर हो जाए जो कि वी अंडरस्टैंड कि मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं. The system should comply with regulatory standards. So जो भी regulatory standards हैं finance के they should also be taken care of. So this is the problem if it is posed to the students. Now let's analyze in terms of WP1 के ये कहाँ पे कौन सी WPs इसके अंदर incorporated है. सबसे पहले WP1 अगर हम देखें तो इसमें इसको हम justify कर सकते हैं कि WP1 है by saying this problem requires deep understanding of machine learning algorithm as well as banking system fraud detection technique and regulatory compliance. So इसमें एक deep engineering knowledge उसको चाहिए इसको करने इस पे काम करने के लिए. अब second हमने कहा कि we are claiming कि it has WP2 which is a range of conflicting requirement. Why we say the problem involves conflicting requirements? It should be highly accurate in detection of fraud while minimizing the false positive to avoid inconvenience. और फिर दूसरा ये है कि avoid inconveniencing legitimate customers. Additionally, the model must be efficient to minimize processing time and operational cost. So उसका time और cost दोनों को कम करना है while still being flexible enough to adapt to new fraud schemes that emerge over time. So there are a lot of conflicting requirements that is being posed in this problem. The third is WP6, extent of stakeholders involved in level of conflicting requirements. So WP6 is हमने कहा था कि a good number of stakeholders should be there. So stakeholder includes the bank's customers, regulatory agencies, data privacy advocates, and fraud analysts. So each group may have their own priorities and requirements, such as the need of customer privacy, compliance with regulatory standards, and effective fraud detection. So in conclusion, we can say the problem may require collaboration with banking experts to ensure that algorithm is accurate, efficient, and ethically sound. It is important to meet the needs and concerns of all stakeholders to ensure that the model meets the needs and requirements of all parties involved. Okay, so it is suggested that once you compose any complex engineering problem, just to convince the others your complex engineering problem is accurate and as per the standard requirements. So you just give a justification in the form of WP1, WP2, 3, 4. तो अगर आप इस तरीके से अपने complex engineering problem को justify करेंगे कि ये वाकई आपका complex engineering problem है, तो nobody would deny it to be a complex engineering problem. सर करंट प्रैक्टिस ये है कि हम अपना CLO जो है वो किसी
अपना जो सीईटी है वो किसी एक या दो सीएलओ के ऊपर बात करते हैं जी जी जो हमने कोर्स आउटलाइन बनाया होता है, तो हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपका जो सीईटी है वो उसमें वही सीएलओ जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। Okay. तो उस तरह से सर हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नहीं देखिए उसमें ये है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर तो लिमिटेड सीएलओज ही होंगे जी लेकिन जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन करते हैं या कोई भी चीज पोज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते लेकिन आप कह सकते हैं लेट से आपने उससे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं यू कैन से कि ये जो 3 क्वेश्चन है इनका किसी सीएलओ से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन बाकी 7 जो है ये आपके सीएलओ पे जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल आपको एक फ्लेक्सिबल मॉडल है कि आप WP1 से WP7 कोई भी चीज आप कर सकते हैं। जी फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों साइड पे लेट से आपके कोर्स में 3 सीएलओज हैं और आपने 10 क्वेश्चन दिए हैं और थर्ड सीएलओ को टच ही नहीं किया और पहले 2 सीएलओ में से क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी सीएलओ में नहीं आ रहे इवन दैट इज ओके जो सीएलओ के रेलेवेंट है उसको आप ले जाएं और मैप कर दें जो रेलेवेंट नहीं है जो एडिशनल चीजें हैं तो वो स्टूडेंट से आप बिल्कुल पूछें जज करें और वो किसी सीएलओ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा आगे नहीं जाएगा। सर वन मोर क्वेश्चन यहाँ जो कीवर्ड्स हैं सर कीवर्ड्स भी हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारे क्वेश्चनिंग में। It is guideline. Please take it as guideline. You can give your own keywords. सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना चाहिए अभी हम आगे जाएंगे तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे लेकिन जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ एक आपको हेल्प करने के लिए हैं बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि बस यही कीवर्ड होगा अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि नहीं बात इसी सीएलओ के मुताबिक बनती है although you are not using that keyword if you are convinced do it ठीक है it is not mandatory to use it these keywords are just the guidelines ठीक है लेकिन आपको सिर्फ अपनी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये जो सीएलओ 1 के बारे में जो हमने जज करना है वो इस स्टेटमेंट से जज हो रहा है दैट इज ओके But sir, we have some restrictions like we have this Washington Accord. Then we have certain restrictions from like not the administration, but अगर हम लोग मिलके जब काम करते हैं तो we come up with certain like अगर आप बहुत ज़्यादा flexibility भी दे दें तो like I'm a cluster head तो मेरे पास अगर 10 आते हैं faculty members तो फिर आपको उनको इंटीग्रेट करना या उनका कॉन्सेप्ट इतना भी कि अगर एक ही कोर्स 2 इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा वैरिड कर देते हैं तो जो स्टूडेंट होता है उसके पर्सपेक्टिव से वो तो कर रहा है अब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो उसके लिए बहुत ज्यादा लाइक सर्टेन केसेस में जो कि आपके जूनियर सेमेस्टर्स होते हैं उनको नहीं समझ आ रही होती ये चीज कि ये जो चीज है मुझे इस तरह करके दी गई है उसको उस तरह करके दी गई है तो दे गेट कंफ्यूज तो जब स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है ना जी सर तो जो एक सिंगल सेक्शन है जो कि आपके 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए चीजें एक जैसी होनी चाहिए ठीक है दूसरी क्लास में क्या आ रहा है उनके साथ हर वक्त उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए ठीक है हर इंस्ट्रक्टर का एक अपना तरीका होता है उसकी एक अपनी सोच है अपनी एक एप्लीकेशन का तरीकाकार है उसका तो अगर दोनों डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट इंस्ट्रक्टर हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो अपने मैकेनिज्म से काम करेंगे तो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ एंड स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली जो टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव इट इज सेम बट जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब नीचे जाती है तो इट वेरीज so there is no issue and there is a long period of time which has to be सर done. ये बता दीजिए कि असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो सेम है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज द स्टूडेंट्स कंसर्न इज ग्रेड्स ओनली उन्हें तो उससे नहीं फर्क पड़ता कि वो जी तो ठीक है अभी थोड़ा सा एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग हाई कॉन्फिडेंस ऑन दिस इम्प्लीमेंट कि ये हम इम्प्लीमेंटेशन बड़े एक्यूरेट तरीके से कर रहे हैं सो इसलिए हम इसको साथ कैरी कर रहे हैं और एक्चुअली जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जिस पास फेल हो रहा है वो और है इसमें हम पास फेल नहीं कर रहे but expectation is as we have a higher confidence in this system so we may move towards fully with this system ठीक है तो वो और इसी तरीके से जब इंस्ट्रक्टर्स भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो ये गाइडलाइन है ये एक्चुअली ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिए हैं जो इस सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं समझते जो इस सिस्टम को समझते हैं एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस कि ये कॉम्प्लेक्स है मुझे पता है कैसे करते हैं कैसे लिखते हैं तो उसके लिए सारी बाउंड्स आर ओपन
ठीक है, if he can do it correctly and properly, then there are no bound for that particular person. So उसके लिए one- total flexibility. Also, so one thing that I have observed कि nurse follows a certain pattern. हम लोग का जो last PC visit था उसमें PVs were from nurse. वो लोग ये देते हैं उसमें आपको leverage कि आप सारे CLOs पे मैप ना करें. कुछ questions जो हैं they can be left. आपने देते हम लोग वो नहीं देते leverage. We have to map every question. We have to map every so lab. your administration or your higher management So we all want are to have there. a more confidence on you. As Actually- you reflect yourself to be a well understanding faculty, so they will have a confidence and they will start delegating flexibility. क्योंकि I'm सर sure. हमारे पास ये leverage है नहीं, इसलिए हम ये जो flexible model है, that personally I like very much. But being a cluster head, even I cannot allow it because I have certain rules कि हर CLO पे map होना चाहिए and हर question map होना चाहिए. बस लेकिन PC ने from the day one जी सर. they have just offered all flexibility. जी सर. They never ask कि आप restrict करें, यहाँ पे restrict करें. लेकिन यूनिवर्सिटीज में कुछ थोड़ा सा जो है Difference of एज opinion. पर देयर जजमेंट उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं होता, तो दे वांट कि आप इन डिस्कशन के साथ करें. लेकिन जैसे जैसे फैकल्टी ये इंप्रेशन देती है कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेव वायलेशंस नहीं होंगी, तो आई एम श्योर कि वो फ्लेक्सिबिलिटीज आना चाहिए. क्योंकि आप ही लोग हैं ना जो जी, इसको ये डिसाइड करते हैं कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी, और आप ही लोगों ने डिसाइड करना है, हम ही सब लोग हैं जो करते हैं. तो आई एम श्योर कि विद द कॉन्फिडेंस दे विल डेलीगेट मोर फ्लेक्सिबिलिटी. सर जी सर, अगर हम एक सिनेरियो लें, फॉर एग्जांपल फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेमेस्टर है कोर्स का, और इसमें नॉर्मली 2 to 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एडवांस कोर्सेज होते हैं. तो कंसीडरिंग दिस एग्जांपल, डोंट यू थिंक कि ये वाले सीजीज तीन कोर्सेज में एक सेमेस्टर में बच्चे अगर कर रहे होंगे तो इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर देम मैनेज, क्योंकि अलग दूसरे कोर्सेज के होंगे असाइनमेंट जी जी, और प्लस ये तीन कोर्सेज के सीजीज. तीन कोर्सेज के अगर फिर प्लस 3 कोर्सेज हैं या 2 कोर्सेज हैं उनके एक सेमेस्टर में, ये तो काफी ज्यादा लोड होगा. नहीं, इतना लोड नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट्स को वो आप दें, लेट्स से कि अगर एक सेमेस्टर में एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम शुड बी एक्सेप्टेबल लोड. लेकिन अगर आप 2 भी देंगे तो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा. या तो उसके सब्जेक्ट्स आसान हो वो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यू कैन से कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट. ठीक है, इट नीड्स टाइम and student has to invest time, and along with that they have to study their subjects also. So if you want to confront them with a good complex engineering problem, don't overload them. तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम कोर्स ओरिएंटेड ना रहें और हम 2-3 कोर्सेज जैसे कि डेटाबेस को और एंड्रॉइड को या मशीन लर्निंग को मिला के उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डिजाइन करें, तो हम ये सारे WPs और ये जो रिसोर्स ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये फुलफिल भी कर सकते हैं और कलेक्टिवली जज भी कर सकते हैं सर्टेन रूब्रिक्स पे कि बच्चे का ये कौन सा वाला पार्ट वीक है या डेटाबेस. लेकिन फिर हम इसको इवैल्यूएट करते हुए असेस करते हुए थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी इसीलिए शायद हमने ऐसे अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि फिर किस कोर्स में वो कितना इवैल्यूएट ये सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन. इसमें ऐसे है कि जो आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या HOD के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो वो इस तरह की मिस कोऑर्डिनेशन नहीं चाहते. फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि एक ही सेमेस्टर में 3 अगर दे दिए जाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन डोंट वांट दिस थिंग. इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल वो कह देंगे जी इस सेमेस्टर में ये 5 कोर्स हैं, इस वाले कोर्स में दे दें, ठीक है, किसी कोर्स को फिक्स कर देते हैं कि इसमें दे दें, ताकि वो एक ये भी हो कि जी कभी ऐसा हो कि सेमेस्टर में हो ही नहीं रहे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, कभी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, फिर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सब और भी चीजें हैं, ओपन एंडेड लैब्स भी हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी है, दूसरी चीजें भी हैं. तो द एडमिनिस्ट्रेशन वांट कि उसका एक अच्छा बैलेंस मेंटेन रहे. अब फैकल्टी के लिए क्या है
फैकल्टी के लिए अब उसने एक अच्छा प्रॉब्लम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डिजाइन करना है और उसने सिर्फ अगर अपने कोर्स पे रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो एक अच्छा प्रॉब्लम डिजाइन नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें ओपननेस हो। तो फैकल्टी की गाइडलाइन ये है कि लेट्स से अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ और सब्जेक्ट्स की चीजें भी आ रही हैं और वो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं तो दें उनको, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चे ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आप उसकी भी चीज उसको दे रहे हैं, अभी उसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो प्रोबेबली दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड विद द स्टूडेंट्स। सो लेकिन अगर वो एक कोर्स पढ़ चुका है तो प्लीज एज्यूम कि उनको उसका भी पता है, उसकी भी कुछ थोड़ा सा टच करें। और अल्टीमेटली वही बात है कि आपके जो कोर्स है उस कोर्स में या आपकी इवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए आप उस कोर्स के सीएलओ से थोड़ा सा बाहर भी निकल सकते हैं। पर जिन सीएलओ को आपने इसके साथ मैप करना है वो रखें, एडिशनल चीजें हैं वो भी बच्चों से करवाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज पीएलओ में जरूर जाएगी, ठीक है। ओके कराची, if you have any question, अब तक जो डिस्कस हुआ है इस पे अगर आपका क्वेश्चन है तो बता दें जब भी कोई क्वेश्चन होता है just interrupt. So if there is any question from the online audience also, you can just interrupt us and we can talk about that before we move forward. Audible तो है ना जी? Okay, should I move forward? Yes sir. सर नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि हम जो प्रॉब्लम होता है वो मिड टर्म के आसपास देते हैं। आपके कारण में क्या बेस्ट टाइम होता है सी कैपेसिटी प्रॉब्लम देने के लिए? स्टार्ट होते हैं या give the student enough time. I would not say कि मिड टर्म के करीब दें या पीछे दें, लेकिन जब आप एक दफा प्रॉब्लम दे रहे हैं तो इट शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, सो यू जस्ट कैनॉट गिव इन अ वेरी फर्स्ट वे। थोड़ा सा करिकुलम का भी थोड़ा सा वो एक स्टैंडिंग बने, तो गिव इट एज सून एज पॉसिबल, गिव एज मच टाइम टू द स्टूडेंट्स एज पॉसिबल so that they can just work properly on those complex problems. So just make a balance. Don't just see when is the midterm or when is the start of semester. So find a suitable time, and normally as a guideline, the third week or fourth week is a suitable time. तो उसके बाद फिर स्टूडेंट को सेमेस्टर के आगे तक जितना आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं तो अच्छा है। And sir, how to judge the point कि जो आप कह रहे थे कि एक semester में मतलब maximum 1 से 2 CET हो, उसके बाद It is your judgment basically। मैं आपको एक गाइड, it is your judgment basically। इसको हायर लेवल से पे इसकी जजमेंट होनी चाहिए कि स्टूडेंट ओवरलोडेड ना हो। अगर आप स्टूडेंट को ओवरलोडेड करेंगे तो लर्निंग कॉम्प्रोमाइज होगी। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। सो इफ यू फील कि दो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी दिए जा सकते हैं क्योंकि बाकी चीजें थोड़ा सा कम हैं तो इट कैन बी डन। So it is objective is whenever you overload the students, the learning will compromise. You don't want this. Please. Sir, ये प्रॉब्लम होता है कि students often want to work on their own ideas when it comes to semester problem। उस चीज को हम फिर किस तरह incorporate करें, या ठीक है initial semester में तो हम उनको अपनी मर्जी का एक फिक्स आइडिया दे सकते हैं कि like you do this and you will do a comparative analysis in all the students क्या हो रहा है। But how to incorporate different diverse ideas फिर किस तरह incorporate किया जाए? ये तो अच्छी बात है कि स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम आपको इतनी मेहनत करके प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट ले आए, जस्ट उसको आप वेट करें, देखें, इस फिल्टर से गुजारें, और अगर आप समझते हैं कि ये उस फिल्टर में नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा अपडेट करें और उसको उसके अपने आइडिया पे जो इफ ही इज हैप्पी विद एनी प्रॉब्लम ही वांट टू वर्क, सो इट इज गुड कि वो उसी पे उसको आप दें, वो नीड इंकरेजमेंट, पर आपकी वेटिंग के साथ होना चाहिए। हमने अभी बात की रिगार्डिंग कि एक कोर्स सेमेस्टर में मल्टीपल कोर्सेज, जैसे अब इस सेमेस्टर में मैं क्लाउड भी पढ़ा रहा हूँ, मैं मोबाइल डिवाइसेस भी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे वही स्टूडेंट्स के वेब इंजीनियरिंग भी कहीं ना कहीं पे जाके पढ़ रहे हैं। अब सर इन 3 कोर्सेज से कंबाइन करके अगर हम एक सीपी बना लेते हैं जिसको लेट्स से मैं फिक्स कर देता हूँ अपने क्लाउड के कोर्स पे, ये मेरे क्लाउड के कोर्स में फिक्स होंगे सीपी, तीनों में भी कर सकते हैं, तीनों में भी आप कैसे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम एक पे कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, वो आप तीनों मिलके, तीनों इंस्ट्रक्टर मिलके भी डिजाइन कर सकते हैं। और बेसिकली तो स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम पे एक्सपोज करना है। इट
डज नॉट मैटर कि आप एक ही सब्जेक्ट के साथ फिक्स करें, आप दो सब्जेक्ट आपके ये दोनों सब्जेक्ट इसी सेमेस्टर में आते हैं, इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम गेम बनाया जाएगा, कैन बी डन। सर सेम क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूंगा कि जैसे आपने ओवरलोडिंग की बात की, स्टूडेंट ओवरलोडिंग के लिए, अब उसमें अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऊपर में, लैब में चूंकि हमने प्रोजेक्ट को कंपल्सरी किया हुआ है कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, अब 3-4 लैब्स हैं, सबके लिए वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को अब वो एक में कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डोमेन्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर या गेम डेवलपमेंट है, और फिर सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन है, फिर वेब इंजीनियरिंग है, अब तीनों की अलग अलग उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो दैट इज लाइक ओवरलोडिंग। अब उसको हम या तो शो ना करें, वो ना करें, लेकिन वो तो है, अब उस चीज को हम कैसे वो मिनिमाइज कर सकते हैं ओवरलोडिंग एक ही सेमेस्टर में वो। सो अगर आपकी जजमेंट है, फैकल्टी की जजमेंट है ये ओवरलोडिंग है, स्टूडेंट नहीं हैंडल कर सकता, तो मस्ट गिव योर फीडबैक ताकि इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। ठीक है, चीजों को ओवरलोड हर चीज करा देना और उनकी लर्निंग ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों को वो करवाएं जो वो कर सकते हैं, जो मैनेजेबल है। ठीक है, 10 चीजें करा देंगे ओवरलोडिंग की वजह से, वो 3 भी नहीं सीखेंगे, तो इससे बेहतर आप 5 कराए, वो 5 सीखेंगे। ठीक है, तो ये फैकल्टी की फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मैनेजमेंट को दें, और मैनेजमेंट फिर अगर उसमें कोई और बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो करें। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ और आपको उसके प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, तो ये इवॉल्व होगा और ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं पे अच्छा बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली हम यहाँ पे ये करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शुरू में 2 असाइनमेंट्स देते हैं, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट इस ब्रेक कर लेते हैं, तो इसके बाद हम एक्टिविटीज को कर लेंगे 10 मिनट। जी प्लीज। और असाइनमेंट 3 और 4 को हम मैप करते हैं नॉर्मली सी कंप्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दे देते हैं, और 3 और 4 की मार्किंग हम कंप्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से कर देते हैं। तो क्या ऐसा ठीक है कि हम चारों असाइनमेंट्स को भी सी पे देके मार्क कर देते हैं? देखिए, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, अगर वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है तो ठीक है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे आपको नाम उसको कुछ भी दे सकते हैं, बट इट शुड फुलफिल द क्राइटेरिया। ठीक है, इफ इट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, तो इफ यू आर अनेबल टू कन्विंस द पीसी, आप कहते हैं हम तो 5-5 करवाते हैं, जब वो देखेंगे यार ये तो है ही नहीं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, तो अगेन देयर इज नो बेनिफिट फॉर